Okay, so in economics, we have three different concepts. The very first one is needs of the people, then comes wants of people, then come demands of people. तीनों चीज़ों में फ़र्क है. लोगों को लगता है नीड, वांट और डिमांड एक ही चीज़ होती है, तीनों अलग है. नीड होती हैं पांच, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, हाउस, हेल्थ, एजुकेशन. ये नीड है, वो फूड में ही आ गया ना सब कुछ. ये पांच बेसिक नीड्स हैं जो हम सबको चाहिए, ठीक है. फूड, हेल्थ, एजुकेशन, हाउस एंड क्लोथ्स, ये पांच चीज़ें बेटा नीड्स हैं. बट सब लोग अलग तरीके से इनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो लोगों की वो वांट होती हैं. फूड एक नीड है, बट what do we want? Someone wants to eat burger, someone wants to eat North Indian food, someone wants to eat South Indian food, someone wants to eat some different cuisine. So that's why needs are common to every human being, but wants differ from person to person. But what we can purchase becomes our demand. Like I say, I want a Lamborghini, but I can't demand for it. So, right? So there is a difference between wants and demand. So आपकी वो wants जो आपकी purchasing power से पूरी हो सकती हैं, those are called as demand. For example, if I want to demand for a chocolate, I can. ठीक है, so I won't use the word that I want a chocolate. I will say I want to demand a chocolate because I can buy it. So needs are the primary level, the upgraded level is wants, and the maximum level is demand for anything that you can buy. For example, if I say that I want to buy a 3 BHK apartment, I can only say I want it. I can't say कि I want to demand a 3 BHK apartment because I can't afford it yet. ठीक है, in future I will be able to, but at present I can only want it. So there is a difference between want and demand. Now this chapter demand will is completely related to price of the commodity, because you know people generally buy more units when the price falls, and when price increases people buy less, given that other factors should not change. For example, on a rainy day, if the umbrella seller increases the price, still his sale will be fair enough, राइट. अगर बारिश वाले दिन अम्ब्रेला वाला प्राइस बढ़ा देगा तब भी उसकी डिमांड होगी प्रोडक्ट की, ठीक है. बट अगर नॉर्मल डे में वो प्राइस बढ़ा देगा तो उसकी डिमांड डाउन चली जाएगी, क्योंकि लोग फिर दूसरी शॉप से खरीदेंगे. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, एंड स्टूडेंट्स एक्चुअली फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग. So what do we actually mean by demand? Because I know you want a definition for demand. So demand is the quantity demanded for a commodity at a certain price by a particular consumer. तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, कितने प्राइस पे, उसको आप बोलते हो डिमांड. सो व्हाट आर द कीवर्ड्स ओवर हियर? द कीवर्ड्स आर क्वांटिटी डिमांडेड, दैट यू आर डिमांडिंग एट अ सर्टेन प्राइस. तो कितने प्राइस है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक हफ्ते में आप एक 10 रुपीज़ की चॉकलेट आती है, आप दो खाते हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मान लो द प्राइस ऑफ दैट चॉकलेट इंक्रीजेस टू 20 रुपीज़. नाउ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन टेकिंग वन चॉकलेट. At a price of 10 you were taking two chocolates in a week. Now assuming the price of chocolate increased by 10 rupees, now it is 20, increased by 10, that makes it 20. Now your demand has fallen by one chocolate, you are already taking one chocolate. So this is known as law of demand. Now if you will say कि मेरे को तो वो chocolate खानी ही खानी है, it's in my diet, then even if its price increase to 50, you will take two of it. So नहीं नहीं, it's basically there should not be change in any other factor. Like what I'm trying to say over here is that there should only be only change in price, not in any other thing. ठीक है, we are not talking about. इन रियलिटी सप्लाई ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो एक चैप्टर हमारा आगे चल के आएगा दैट विल रिलेट डिमांड विद सप्लाई एज वेल. बट एट दिस स्टेज वी आर ओनली गोना टॉक अबाउट डिमांड, because for doing demand we should be a consumer. Supply is done by suppliers, so we need to think from different aspect when we will discuss that particular chapter. As of now we are consumers, so we will assume that we are going to a market to buy something, and we look for some factors, like we look for price, we look for price of substitute goods. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोका कोला की कोक खरीदने जाते हो तो आप थम्सअप और पेप्सी का प्राइस पूछो. अगर आप
एक कंपनी की कॉफ़ी खरीदने के लिए जाओ, मे बी नेस्कैफ़े की, तो शायद आप ब्रू का भी प्राइस पूछो, ठीक है। अगर आप पेन खरीदने के लिए जाओ तो आप उसकी रिफिल का भी प्राइस शायद पूछो कल को, अगर रिफिल चेंज करनी हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि वी लुक फॉर डिफरेंट फैक्टर्स बिफोर डिमांडिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। सो बेटा इस चैप्टर का जो पर्पस है वो यही है, आप लोगों को ये सिखाना हाउ टू मेक रैशनल चॉइसेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो बेटा डिमांड का मतलब होता है एक कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हो गिवन प्राइस पे। बेटा किसी भी चीज़ की डिमांड करने के लिए ना 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है। पहली कंडीशन, आपको उस चीज़ की डिज़ायर होनी चाहिए, यू वांट समथिंग, ठीक है। पहली कंडीशन तो यही है कि आपको वो चीज़ चाहिए। जब तक आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं तब तक उसी डिमांड क्यों करोगे। दूसरी कंडीशन है बेटा वो चीज़ अवेलेबल भी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी डिमांड कैसे करोगे। तीसरी चीज़, उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो वेरी गुड, बिल्कुल, मतलब इन तीनों कंडीशन को जब तक पूरा नहीं करा जाता, यू कांट से द वर्ड डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, आई वांट टू डिमांड दैट। यू कैन ओनली डिमांड अ थिंग व्हेन दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बेटा इसको याद करने का तरीका है सैड। सैड एक एक्रोनिम बन गया ना, सफिशिएंट रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, डिजायर, पहले 3 अल्फाबेट्स, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए वो खरीदने के लिए बेटा, वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए और उसको लेने की डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं टू यूज़ द वर्ड डिमांड। ना बेटा इंडिविजुअल डिमांड, अब देखो एक मार्केट में खरीदने वाले बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। अब देखो एक कस्टमर में और कंज्यूमर में फ़र्क होता है। कस्टमर, फॉर एग्जांपल मैंने एक वॉच खरीदी, मैं कस्टमर हूँ, बट मैंने वो गिफ्ट कर दी अपने भाई को, तो कंज्यूमर वो है, कस्टमर मैं था, ठीक है। तो हाँ, हाँ बेटा, बिल्कुल, कस्टमर इज़ द बायर, जो खरीद रहा है वो कस्टमर है, बट जो यूज़ कर रहा है वो कंज्यूमर है बेटा प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले बेटा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स चलती है कंज्यूमर परस्पेक्टिव से, कस्टमर कैन बी एनीवन, ठीक है। इवन अ होलसेलर इज वंस अ कस्टमर व्हेन ही बाइज इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, then only he sells in lots to the retailers, right? So then you know, the one who is selling is the seller, the one who is buying is the customer, and the one who is using it will be the consumer, fine। मैं कंज्यूमर हूँ, यस, इफ यू आर गिफ्टिंग मी समथिंग आई एम द कंज्यूमर एंड यू हैव बॉट इट, यू आर द कस्टमर बेटा। तो कंज्यूमर वो होता है जो यूज़ करता है अल्टीमेटली। हाँ, तो इंडिविजुअल डिमांड बेटा होती है एक मार्केट में, अगर हम एक सिंगल कस्टमर को कंसीडर करें। अब फॉर एग्जांपल आई लेट्स सपोज दैट, लेट मी टेक माय एग्जांपल माई सेल्फ, दैट आई गो टू मार्केट, आई बॉट 2 chocolates फॉर and 1 chocolate costed me ₹10, so I incurred an expenditure of ₹20 to get 2 chocolates each at a price of ₹10. So that is my individual demand. I am the individual consumer. Now let's suppose that the price of chocolate falls to ₹5. At the next time I go to market, I take 4 chocolates. My total expenditure remains the same, ₹20, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा मिल गई मुझे, पहले 10 रुपये की 2 चॉकलेट 20 रुपये में आ रही थी, अब 4 चॉकलेट आ रही है 20 रुपये में, बिकॉज द प्राइस हैज रिड्यूस टू ₹5। सो नाउ दिस इज इंडिविजुअल डिमांड व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग डिमांड फ्रॉम इंडिविजुअल साइड। नाउ वी वांट ऑन मैक्रो लेवल कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें बेटा, कि जितना लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा मनी की वेलोसिटी इकॉनमी में बढ़ेगी, उतनी स्पीड से मनी सर्कुलेट होगा। तो इंडिया में अगर हमें ग्रोथ करनी है, जीडीपी बढ़ाना है, तो बेटा हमें पूरी इंडिया में जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। बट स्टार्ट तो बेटा माइक्रो लेवल से होता है, ठीक है। जब लोग इंडिविजुअली पैसा खर्च करते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि 1 पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सनस इनकम। एक बंदे का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम होती है, ठीक है। तो इकोनॉमी ऐसी चलती है, जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा जीडीपी, फाइन। तो ये मैंने आपको जो अभी एग्जांपल बताया वो मैंने थोड़ा मैक्रो साइड से समझा दिया, बट इंडिविजुअल में तो हम सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड होती है बेटा, एक सिंगल कंज्यूमर किसी फलाना कमोडिटी की कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, वो होती है बेटा इंडिविजुअल डिमांड। मान लो एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने एक पेन का, चलो 5 रुपये का पेन है, वो 3 खरीदता है, अब पेन का प्राइस हो गया 10, उसने कहा मैं सिर्फ 2 पेन लूँ, ठीक है। जब तक 5 रुपये प्राइस था वो 3 पेन ले रहा था बेटा, अब प्राइस हो गया 10 रुपये, उसने कहा मैं सिर्फ 2 पेन लूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया कि पेन महंगा हो गया,
10 रुपये हो गया, तो उसने कहा कि अब मैं डिमांड कम करूंगा। तो बेटा इसको हम एक डिमांड कर्व पे कैसे शो करेंगे, वो भी हमें आना चाहिए, हाउ टू मेक अ डिमांड कर्व। तो बेटा डिमांड को DEMAND, इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने के इंस्टेंट इकोनॉमिक्स में हम उसको DD करके लिख देते हैं, छोटा कर दिया, पहला अल्फाबेट भी डी है, आखिरी अल्फाबेट भी डी है, तो हमने DD लिख दिया। तो DD स्टैंड्स फॉर बेटा डिमांड ओनली। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल वी कैन जस्ट यूज द एक्रोनिम एज DD। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं डिमांड शेड्यूल का बेटा। डिमांड शेड्यूल में प्लीज ऑब्जर्व, जो पीछे अभी शेड्यूल था ना, मैं सेम शेड्यूल ले रहा हूँ बेटा। प्राइस, अभी मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ प्राइस, बट इंस्टेड ऑफ प्राइस व्हाट वी आर गोना राइट, जस्ट कैपिटल P। प्राइस इकोनॉमिक्स में P को प्राइस ही बोला जाता है, तो P ही लिखेंगे, बट अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए प्राइस लिख रहा हूँ इन रुपीज़ बेटा, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी को बेटा मैं QTY शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और डिमांड को मैं DD करके लिख रहा हूँ इन यूनिट्स, कितनी यूनिट्स आप डिमांड कर रहे हो बेटा। पेन का प्राइस था 10 था, 5 था, सॉरी 5 रुपीज़ था, तो आप बेटा 3 पेन खरीद रहे थे। अब प्राइस हो गया 10 रुपये, आपने कहा अब सिर्फ आप 2 पेन लोगे, आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी कम आ रही है, दैट्स अ लॉस। बट लेट्स सपोज दैट दिस इज एन एज्यूम्ड शेड्यूल। अब देखो वो उल्टा है, अभी हम प्राइस को डिमांड से रिलेट कर रहे हैं, डिमांड को प्राइस से रिलेट नहीं कर रहे हैं। देखो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, बट अगर डिमांड कम हो जाएगी तो जैसे सपोज एक कंपनी है जियो, वो अपनी सर्विस देती थी पहले 150 में 30 दिन की। अब उनको पता है कि पूरी कंट्री में करोड़ों यूजर आ गए हैं, तो मैं रेट बढ़ा भी दूंगा तो 10 मैक्सिमम 1 लाख कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट, तो उन्होंने 150 रुपये में 30 दिन देते थे, अब 150 रुपये में 20 दिन दे रहे हैं। दैट्स बैड। अब ऐसे बात करो, मेरे को पहले का आइडिया नहीं, मैं तो 20 दिन वाला ही दिया पैक, हाँ 150 में। तो उन्हें अब पता है लोगों को फर्क पड़ेगा नहीं, जिनको पड़ता है हटा भी है, मतलब डिमांड तो बढ़ ही रही है। करेक्ट, तो ये भी तो बेसिकली इसका एग्जांपल नहीं हुआ। जैसे अब पेन का आपने बोला डिमांड कि सप्लाई में बोल सकते हैं, देखो वो सप्लाई से रिलेट भी कर रहा है वो काफ़ी 5 हद रुपये में एक तक, पेन मिलता था, क्योंकि देखो पूरी कंट्री सप्लाई, खरीदने हाँ लग गई। अब वो उनकी। 10 रुपये भी रेट कर दो, कह रहा क्या ही फर्क पड़ता है। सो गाइज गवर्नमेंट इज सेइंग कि सर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस ही बढ़ जाता बढ़ता है, है, राइट। मतलब जनरली डिमांड दिखता किसी है चीज़ की एटलीस्ट। बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, बट अगर डिमांड स्टेबल रहे, नॉर्मल रहे, जितनी चल रही है उतनी चले, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? और किसी चीज़ का अगर ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम होना जाहिर सी बात, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल चीज़ें, फिर दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स पहले वर्क्स। लाख में सबसे ऊपर का मॉडल आता था, अब लाख में आपको बेसिक मॉडल देते हैं, करेक्ट। क्योंकि उन्हें पता है कि बेवकूफ़ बैठे खरीदने वाले। अब देखो बेटा, यहाँ पर प्राइस आपका आएगा हमेशा वाई एक्सिस पे, और इकोनॉमिक्स में बेटा जो भी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, बाय डिफॉल्ट इट विल कम ऑन एक्स एक्सिस। तो वेयर एवर यू विल सी द अच्छा, वर्ड क्वांटिटी, पुट इट ऑन एक्स एक्सिस ब्लाइंडली बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, और प्राइस बेटा रुपीज़ में आएगा। ग्राफ को सुंदर बनाना आना चाहिए, डिटेल्स अपनी पूरी लिखना। पहले ओरिजिन एक्सेस लिखोगे दोनों एक्स वाई, देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड। बेटा क्वांटिटी के लिए मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ, 1 2 3 में इंटरसेप्ट बहुत है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। बेटा वाई एक्सिस पे लेने के लिए 5 10 में है, तो चलो 2 में ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। सर वाई डेंट यू टेक 5 एंड 10 डायरेक्टली, जस्ट बिकॉज बेटा थोड़ा ग्राफ थोड़ा बड़ा बने। 5 10 में तो बहुत छोटा सा बन जाता है, इसलिए थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए मैंने इसको 2 4 6 से 10 में लिया है। बेटा टेंशन देंगे सब बच्चे। 5 के प्राइस पर आप 3 पेन खरीद रहे थे, तो बेटा 5 आएगा 4 और 6 के बीच में, यहाँ 5 आएगा कहीं बीच में, ठीक है, लिखना नहीं है, मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। और बेटा डिमांड कितनी हो रही है 3, तो 5 के प्राइस पर आप 3 पेन खरीद रहे हो, यहाँ पर आप डॉट लगा दोगे। 10 के प्राइस पे आप 2 पेन खरीद रहे हो बेटा, 10 के प्राइस पर आप 2 पेन खरीद रहे हो, आप यहाँ पर डॉट लगा दोगे, थोड़ा सा आगे आएगी डॉट यहाँ पे, थोड़ा और फिर आगे चलेगी लिटिल बिट पीछे, ठीक है। नाउ ये जो 2 लाइन्स है ज्वाइन करना है इनको, ठीक है, डिमांड कर्व आपकी रेडी हो जाएगी बेटा। बट एक टिप, इसको बस इतना ज्वाइन मत करना, इसको ना एक्सटेंड करा जाता है लाइक दिस, इसको ना एक्सटेंड करा जाता है, क्योंकि इसमें अभी भी बेटा ऊपर नीचे होने का स्कोप है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा फिर डिमांड और ऊपर जाएगी, प्राइस अगर नीचे जाएगा तो डिमांड फिर और नीचे आएगी। तो बेटा नीचे आना अच्छी बात है कि डिमांड बढ़ रही है और आगे जा रही है, बट अगर प्राइस बढ़ रहा है उसके साथ साथ डिमांड भी जो होगी पीछे जाती जाएगी। अब देखो अब यहाँ पर हुआ क्या बेटा, यहाँ पर ये हुआ कि जब तक प्राइस बेटा 5 रुपये था, आप कितने पेन खरीद रहे थे, आप बेटा 3 पेन खरीद रहे थे। 5 रुपये के प्राइस पे आप 3 पेन ले रहे थे। अब क्या हुआ बेटा, प्राइस हो गया पेन का 10 रुपये, और आप कितने पेन ले रहे हो बेटा, आप 2 पेन ले रहे हो।
तो अगर बेटा मैं पुराने वाले पॉइंट को पॉइंट ए बोलूँ और नए वाले पॉइंट को मैं पॉइंट बी बोलूँ, तो बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अपवर्ड मूव हुए हो। अब मूव क्यों हुए हो? क्योंकि पेन का प्राइस 5 रुपये से बेटा 10 रुपये हो गया और डिमांड आपने 3 पेन से 2 पेन कर दी। ठीक है, ग्राफ को जितना डिटेल कर सकते हो उतना डिटेल आप कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो मतलब बहुत एक्सपर्ट लेवल का लगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस आई इंसिस्ट कि डू जस्ट दिस मच ओनली एंड दैट्स सफिशिएंट, नो नीड टू डू ऑल दिस। ठीक है, नाउ just see that now from A you have moved to point B. That's it. Just make this much only, right? And one more suggestion. At the corners of this white line, please mention D over here, D over here, and also make a D over there also. Now, why DD? It means demand. ठीक है, so DD means बेटा demand. तो ये अभी लेफ्ट साइड पर जो हमने बनाया बेटा ये शेड्यूल था। शेड्यूल समझ गए हो क्या होता है? बेटा शेड्यूल होता है एक सिंगल कंज्यूमर कितने प्राइस पे किसी चीज़ की कितनी डिमांड कर रहा है, वो जिस टेबल में दिखाते हो ना उस टेबल को शेड्यूल बोलते हैं। ये टेबल ही तो है, और क्या टेबल ही तो है बेटा, इस टेबल को बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। और बेटा जब आप इस सेम टेबल को एक ग्राफ में प्रेजेंट करते हो वो क्या बन जाती है? डिमांड। सो ग्राफिकली प्रेजेंटिंग अ डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट डिमांड कर्व। ठीक है, जब हम इस शेड्यूल को ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो वो डिमांड कर्व होती है बेटा। तो नाउ आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिमांड कर्व सब लोग बना लेंगे अब। डिमांड एक्स एक्सिस पे, प्राइस वाई एक्सिस पे, शेड्यूल के हिसाब से आपको डिमांड कर्व बनानी है बेटा। कुछ बच्चे मेरे से एक सिली सा डाउट पूछते हैं कि सर जो वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे हैं ये क्या सर सेम वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे भी आएंगे? बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, कि क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। प्राइस अलग चीज़ होती है बेटा, डिमांड अलग होती है। वैसे तो चीज़ का प्राइस 10 होता है, लोग अगर उस चीज़ की 1000 यूनिट खरीद रहे हैं तो बेटा वो एक इंटरसेप्ट पे कैसे कॉमन आ सकता है? तो बेटा एक चीज़ बट होती है, जो अपने यहाँ एक्स एक्सिस अगर नेगेटिव एक्सेस बनता बेटा तो एक्स नेगेटिव बेटा -1 -2 में जाता है। ठीक है बेटा, और अगर वाई एक्सेस बनता है तो वो -2 -4 में जाता है। ठीक है, तो वाई वाले वाई में नेगेटिव रहता है बेटा, एक्स वाले एक्स में नेगेटिव रहते हैं। बट बेटा जो हमारे 11th क्लास में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर ग्राफ बनेंगे बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेंगे, जहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव बेटा रहेगा। तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, आप लोग बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, तो बेटा पहले क्वाड्रेंट में तो बेटा यहाँ पर आपका एक्स एक्सेस है, यहाँ पर आपका वाई एक्सेस और आपके इंटरसेप्ट यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, तो बस दिस इज हाउ यू मेक डिमांड कर्व आउट ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। नाउ प्लीज लुक ऑन योर स्क्रीन्स। अब आपको ये डिमांड कर्व देखते ही समझ में आ गई क्या हुई है, क्या हुआ है। यहाँ पे पीछे बनाई थी हमने 5 के प्राइस पर बेटा आप 3 पेन ले रहे थे और 10 के प्राइस पर बेटा आप 2 पेन ले रहे हो। ठीक है, तो बेटा ये जो टेबल है इसको क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो जब आप इस शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हो लाइक दिस, तो बेटा ये क्या बन जाती है? डिमांड कर्व। और क्योंकि बेटा ये एक सिंगल कंज्यूमर की बात करी जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अगर 2-3 कस्टमर्स की मैं ऐसे बना दूंगा जितने मतलब, और एज्यूमिंग उतने ही कंज्यूमर्स हैं मार्केट में और कोई नहीं है, तो बेटा वो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड कर्व। एक अब मार्केट तो बेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे अपना तिलक नगर एक मार्केट है बेटा, करोल बाग मार्केट है, चांदनी चौक मार्केट है बेटा। मार्केट की डेफिनेशन तो ऐसी कुछ नहीं है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल मीट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। लोग ट्रांजेक्शन्स करने के लिए एक मार्केट में फेस टू फेस मिलते हैं बेटा, मार्केट की वही डेफिनेशन होती है। तो आप एक पर्टिकुलर मार्केट में जितनी भी शॉप्स हैं उसमें जितने भी कंज्यूमर्स सामान खरीदते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आके, उसको बेटा जब आप एक शेड्यूल में लिखते हो तो वो होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। और जब हम उसको ग्राफ में बनाते हो बन जाता है बेटा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व बेटा देखो, मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनती है। सपोज करो बेटा, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ थोड़ा बेटर दिखाने के लिए। मान लो बेटा ये वही पेन है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। तो बेटा मान लो इस पेन को खरीदने वाले सिर्फ 2 कंज्यूमर हैं। बहुत लोग खरीदते होंगे बट हमें समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेटा कॉन्सेप्ट के हिसाब से मान लो वो पेन जब तक बेटा 5 रुपये का मिल रहा था, तो एक कंज्यूमर है उसका नाम है कंज्यूमर ए, दूसरा कंज्यूमर है बेटा उसका नाम है कंज्यूमर बी। जब तक इसका प्राइस बेटा 5 रुपये था तो कंज्यूमर ए कितनी क्वांटिटी ले रहा था बेटा? वो 3 पेन खरीद रहा था। और मिस्टर बी कितने पेन खरीद रहे थे? वो खरीद रहे थे 5 पेन। अब बेटा पेन का प्राइस बढ़ गया तो दोनों की डिमांड में फ़र्क आएगा इससे।
मिस्टर ए ने बेटा डिमांड करनी शुरू कर दी सिर्फ 2 पेन, डिमांड कम कर दी, और मिस्टर बी ने बेटा डिमांड करनी शुरू कर दी सिर्फ 3 पेन। तो बेटा अगर मुझे ओवरऑल मार्केट डिमांड देखनी है, एज्यूमिंग कि सिर्फ यही दोनों है जो पेन खरीद रहे हैं, खरीदने वाले तो कितने मर्जी होंगे, बट मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 लोग लेके चल रहा हूँ कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कंज्यूमर नहीं है इस पेन का बेटा। तो 5 रुपए के प्राइस पे 3 पेन ये ले रहे थे, 5 पेन ये खरीद रहे थे, तो टोटल बेटा 8 पेन बिक रहे थे। बेटा जब प्राइस 10 रुपये हो गया तो ये 2 पेन ले रहे हैं और मिस्टर बी 3 पेन ले रहे हैं, तो बेटा टोटल कितने पेन बिके अब की बार? 5 पेन। तो बेटा आप देख रहे हो कि जब प्राइस बढ़ा पेन का तो ओवरऑल बेटा मार्केट में डिमांड भी कम होगी। फायदा तो तो उनको ही होगा कि हमारा प्रोडक्ट भी कम जा रहे हैं और पैसा भी ज़्यादा तो बेटा मार्केट डिमांड क्या होती है? उतनी क्वांटिटी जो सारे कंज्यूमर एक पर्टिकुलर मार्केट में खरीद रहे हैं एक सर्टेन प्राइस पे। अब बेटा 5 रुपये के प्राइस पे 8 पेन बिक रहे थे, अब बेटा 10 रुपये के प्राइस पे सिर्फ 5 पेन बिक रहे हैं, राइट। तो जब प्राइस बढ़ा मार्केट में डिमांड बेटा कम हो गई। अब जब आप इसको बेटा एक कर्व में दिखाओगे ना, तो कर्व में ए की भी डिमांड आएगी, बी की भी डिमांड आएगी, और पूरे मार्केट की भी लास्ट में डिमांड आएगी बेटा, ठीक है। तो ये देखो बेटा, अगर मैं इसी मार्केट डिमांड शेड्यूल को दोबारा यहाँ पर लिख के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ बेटा, मार्केट डिमांड शेड्यूल बेटा, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, प्राइस को मैं पे लिखूँगा इन रुपीज़, जितनी क्वांटिटी ए खरीद रहा है, क्या मैं उसको क्वांटिटी ए करके लिख सकता हूँ? क्वांटिटी वो ए खरीद रहा है, कस्टमर का नाम है मिस्टर ए, तो जितनी क्वांटिटी ए खरीद रहे हैं क्यू और नीचे ए। बेटा क्यू ए मैंने ऐसे नहीं लिखा है, मैंने क्यू ऐसे लिखा है और ए मैंने उसके सब एलिमेंट में लिखा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ मेंशनिंग क्वांटिटी डिमांडेड बाय कस्टमर ए। बेटा वो कितने पेन की यूनिट खरीद रहे हैं वो यूनिट्स में आएगा, और कितनी क्वांटिटी बेटा मिस्टर बी खरीद रहे हैं, बी नीचे ऐसे आएगा इन यूनिट्स, और बेटा ओवरऑल कितनी क्वांटिटी मार्केट में डिमांड हो रही है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दोनों का सम होगा ये, फाइन बेटा। नाउ शेड्यूल बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। बेटा शेड्यूल आप लोगों को भी याद होना चाहिए, जब प्राइस 5 रुपये का था तो बेटा मिस्टर ए तो 3 पेन खरीद रहे थे और मिस्टर बी बेटा 5 पेन खरीद रहे थे, तो टोटल कितनी डिमांड हो रही थी बेटा? 8 पेन की हो रही थी। अब क्या हो गया, पेन का प्राइस बेटा 10 रुपये हो गया, तो इन्होंने कहा कि अब ये 2 पेन लेंगे और ये बेटा 3 पेन लेंगे, तो ओवरऑल डिमांड बेटा 5 पेन की होगी। तो अब बेटा जब आप इसको एक डिमांड कर्व में दिखाओगे तो अब की बार बेटा आपकी जो डिमांड कर्व ये बनेगी, इसको आप क्या बोलोगे? मार्केट डिमांड कर्व। ये जैसे बेटा मार्केट डिमांड शेड्यूल है, वैसे ही आपकी क्या बनेगी? मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व बेटा, मार्केट डिमांड कर्व बनाने के लिए वैल्यूज़ को ज़रा आप ऑब्जर्व करो। प्राइस 510 है, तो मैं फिर से जो प्राइस की वैल्यूज़ लूँगा यहाँ पे इन रुपीज़, बेटा वो मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 भी लिख दो, और बेटा जो क्वांटिटी डिमांडेड है यूनिट्स में वो हमारी आ जाएगी 1 से लेकर मैं 10 तक ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा 9 10 के लिए गैप चाहिए। नाउ पहले ए का डिमांड कर्व बनाएंगे, फिर बी का बनाएंगे, फिर मार्केट का बनाएंगे बेटा। नाउ ए की डिमांड कर्व है बेटा 5 रुपये के प्राइस पे वो 3 पेन खरीद रहा है, तो प्राइस ले लो बेटा 5 रुपये, इसके बीच में आ गया 4 5 रुपये, और वो पेन ले रहा है बेटा 3, तो यहाँ पर आप ए का निशान लगा दो। और बेटा 10 रुपये के प्राइस पर अब वो 2 पेन ले रहा है, 10 रुपये के प्राइस पे बेटा 2 पेन ले रहा है, मार्क लगा दो, और ए की डिमांड कर्व जल्दी से रेडी कर दो। ये रही आपकी ए की डिमांड कर्व, और इस पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट डी डी, राइट डाउन डी ए। डी ए डिमांड कर्व ये ए की है ना बेटा, तो डी ए लिखोगे, डिमांड कर्व ऑफ ए, डिमांड कर्व ऑफ ए, बस सफिशिएंट, ठीक है। अब बी के बनाते हैं बेटा, 5 रुपये के प्राइस पे वो 5 पेन खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 5 रुपये के प्राइस पे वो 5 पेन खरीद रहा है बेटा, तो 5 पे 5 आ जाएगा। बेटा 10 रुपये के प्राइस पे वो 3 पेन खरीद रहा है, 10 रुपये के प्राइस पे बेटा 3 पेन लगा दो, ये रहे। अब बेटा इनको ज्वाइन करेंगे जल्दी से। अब देख रहे हो कि मैं इनको एक्सटेंड करके छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ डॉट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा, मैं इनको ना एक्सटेंड करके छोड़ रहा हूँ, राइट। नाउ फिर बेटा
ब्लैक बोर्ड पे पेन टैब में थोड़ा सा इशू आ जाता है। जब इसको स्केल से ड्रॉ करोगे तो लाइन बेटा बिल्कुल यहाँ पर सीधी आएगी। नाउ बेटा यहाँ पर जैसे अपने डी ए लिखा था वैसे अब यहाँ पर डिमांड कर्व ऑफ बी लिखोगे। डिमांड कर्व ऑफ बी, ये मिस्टर बी की डिमांड है। अब पूरे मार्केट की डिमांड बेटा 5 रुपये के प्राइस पे 8 पेन बिक रहे थे, तो लिखो 5 रुपये के प्राइस पे 8 पेन। 8 कहाँ पर है बेटा, ये रहा 8। 5 के प्राइस पे बेटा 8 हो गया। 10 के प्राइस पे 5 पेन, 10 के प्राइस पे व्हेन द प्राइस इज 10 डिमांड इज ऑफ 5 पेन ओवरऑल, तो बेटा 5 यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट, बस बन गई आपकी डिमांड कर बेटा कंप्लीट। इसको भी ज्वाइन कर देंगे हम। तो इसमें लिख देंगे बेटा डिमांड कर्व ऑफ होल मार्केट। अब बेटा एक्चुअली रियलिटी में तो कंज्यूमर्स बहुत सारे होते हैं, सिर्फ ए और बी नहीं होंगे, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, है ना। तो बेटा एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने प्राइस पे, ये आपको समझाया इसलिए जा रहा है बेटा, ये सिर्फ इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि अगर किसी चीज़ के प्राइस में चेंज आता है तो उसका एक सिंगल कंज्यूमर पे इफेक्ट नहीं आता, उसका इफेक्ट मार्केट में जितने भी कंज्यूमर होते हैं उन सब पे आता है, बस इसलिए दिखाया है। और बेटा यही रीज़न है जिसकी वजह से आपकी डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रही है। जो डिमांड कर्व अपवर्ड जाती, अपवर्ड जाने का मतलब क्या है, प्राइस ही बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है, जो कि हो नहीं सकता। इसलिए डिमांड कर्व नीचे, बहुत वो एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। इन जनरल केसेस में क्या होता है बेटा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही जाती है, ठीक है। डाउनवर्ड इसलिए जा रही है बेटा क्योंकि इन सिंपल वर्ड्स अगर डिमांड कर्व ऐसे शेप करने लग जाएगी तो बेटा इसका मतलब क्या है कि प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दोनों बढ़े। तो बेटा इसीलिए प्राइस जब कम होता है तब डिमांड बढ़ती है, या जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम होती है। तो इसी वजह से बेटा डिमांड कर्व जो है उसकी शेप डाउनवर्ड होती है। ये डाउनवर्ड है। अपवर्ड कैसे होता है बेटा, ऐसे ऊपर की तरफ। अपवर्ड का मतलब है अगर वाई एक्सेस वाली चीज़ बढ़ रही है तो एक्स वाली चीज़ ही बढ़ रही है। बेटा डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर वाई वाली चीज़ कम हो रही है तब एक्स वाली चीज़ बढ़ रही है। तो बेटा जब तक प्राइस कम होगा नहीं डिमांड बढ़ेगी नहीं, और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। दैट्स वाई बेटा ये इस शेप में आता है। तो बेटा ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का इंट्रोडक्शन।